Okay, so guys, good afternoon. This is Deepak, the Two Wheels Wanderer, and welcome back to my channel. It is 3:24 in the afternoon of 14th of March, and it's an unusual time for me to ride. It's a Saturday, and I am riding towards Kalimpong Market. I am sounding excited because yes, there is an exciting ride lined up ahead. I am heading out for what could be a epic ride to East Sikkim. Yes, you guys must have heard that the Dokala and Chola passes have now been opened for the tourists. Although past week there's been heavy rainfall, oblique snow there at higher reaches. So even I believe as latest as yesterday, that road was closed. But we are heading out on Monday, and we are taking the Zuluk Wala Rasta towards Nathang. So we are hoping by Monday the weather clears up and we get some clearance. So with that hope, we are going ahead for the East Sikkim ride. When I say we, I'm gonna introduce to you guys to another friend of mine who's riding with me for Monday. And yeah, for that I wanted to get this bike serviced before the ride. It has been showing a lot of signs lately of wear and tear, and I will talk about it later. There are a lot of issues coming up as the odometer keeps logging miles. But unfortunately, the KTM service center at Sivok, the nearest one, does not open on Sundays. So, and they said कि Saturday को ले आओ. I had managed somehow to send this bike across, but then Saturday also was completely booked for them. And so here I am taking this bike to a local mechanic in Kalimpong only. I spoke to that guy. He's one of the best mechanics here. So I want to give this bike to him and just whatever best he can do in terms of servicing this bike. And this is the main market. Here se R3. This is one R3 which I've seen quite a lot here in Kalimpong. This is one bike that have always caught my attention whenever I see it riding on the streets. AGV helmet पहन के बंदा चल रहा है. Somebody is still managing R3 so well. Brand new chain sprocket system डाला हुआ है, ऐसा लग रहा है. Oh, he has also got a 360 का mount stick. Oh my God, look at him. The R3 has so much potential. If only Yamaha had given this bike as much R&D and as much effort and marketing as they've given the R15. Yeah, but sadly
चलो गाइज, आई एम बैक एट माई रूम। बाइक का बेसिक सर्विसिंग करा दिया है। पूरे कलिम्पोंग में एक ही मैकेनिक मिला हु नोज बाइक्स वेल, एंड मुझे उसका फीडबैक अच्छा मिला था, तो मैंने वहीं जाके उससे बेसिक सर्विसिंग करा ली है। एंड वहाँ जाके पता चला कि ही हैज़ वर्कड ऑन मेनी बिग बाइक्स हियर इन कलिम्पोंग। ही हैज़ वर्कड ऑन BMW GS 1250 रिसेंटली। तो ऑयल फिल्टर क्लीनिंग, एयर फिल्टर क्लीनिंग, बोथ ब्रेक पैड्स चेंज, इंजन ऑयल चेंज, वो सब चीज़ें चेक करा ली हैं। एंड होपफुली इस ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है इस ट्रिप का। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर in Kalimpong tomorrow morning, and then I meet the other rider who is joining me at Rongli. So I'm not going down through Teesta wala route, I'm going through Algra wala route, which is much better. मैंने किया भी नहीं है तो वो देख लूँगा मैं। तो we meet at Rongli। Rongli पे हम अपने passes collect करेंगे जो हमने बनवाए हैं। Then we go up ahead towards Zuluk। Zuluk से दिन का स्टॉप हमारा नथांग में है। It's a beautiful जुलुक के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा विलेज है, वहाँ से बहुत बढ़िया व्यू है। आई हर्ड वहाँ में हॉल्ट कर रहे हैं। उसके बाद वी आर वे लुकिंग कि आगे का रास्ता क्लियर है कि नहीं, बिकॉज रिसेंटली काफ़ी ऑन एंड ऑफ रास्ते बंद हो रहे हैं ये सारे कुपुप और नाथुला वाले। वो देखना पड़ेगा कि वो रास्ता खुला है कि नहीं, एंड इफ़ इट इज़ ओपन देन वी डू दैट। एंड देन बीच से रास्ते कटते हैं फॉर 2 ब्रांड न्यू passes which have opened up for the tourists recently, Dokala and Chola. So Dokala, if you guys remember, is the same place where the standoff took place between India and China in 1617, I guess. So yeah, वहाँ से निकलेंगे, नाथुला हिट करेंगे, नाथुला से फिर नीचे गैंगटॉक आ जाएंगे। देन गैंगटॉक से वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स साउथ सिक्किम, एंड साउथ सिक्किम में ये रेवांगला, पेलिंग, नामची होते हुए बैक टू कलिम्पोंग। बाकी बाइक में कुछ एडिशंस आप लोगों ने शायद मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई दिया था। आई गॉट अ न्यू मल्टीमीडिया सिस्टम, जिसकी पहली लंबी राइड ये होने वाली है। मल्टीमीडिया सिस्टम के सारे फीचर्स अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि SD कार्ड उसमें नहीं लगाया, तो DVR फीचर नहीं चलेगा। प्लस उसका TPMS एक टायर को सेंस कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा। तो बट कल मैंने थोड़ा सा टायर के वॉल्व्स जो वॉल्व्स होते हैं वो क्लीन कराए हैं, तो आप होपफुली अभी आज मैं ऑन करूँगा तो शायद वो सेंस कर ले। एंड्रॉइड ऑटो इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। एंड मुझे एक प्रॉब्लम ये था कि मेरा मोबाइल अगर मेरे हेलमेट इंटरकॉम से कनेक्टेड है एंड साथ ही साथ मेरे मल्टीमीडिया से कनेक्टेड है, तो विल आई बी एबल टू हियर द म्यूजिक। But then that issue is resolved. It connects to both of them. But then if you want कि वो इसके साथ म्यूज़िक प्ले करे तो ऑडियो इसमें आ जाता है। या द ब्रांड न्यू रोलॉन का किट मैंने स्प्रॉकेट सिस्टम चेंज कर दिया है, जो मुझे लग ही रहा था मिगला राइड में कि शायद टाइम आ गया चेंज करने का। मैंने पूरी मिगला राइड ऐसे निकाल ली थी, बट उसको लगा दिया, नया चेन स्प्रॉकेट सिस्टम लग गया है। एंड या दैट इज़ इट। तो वी आर ऑल सेट। ये पैकिंग मुझे करनी है। कुछ सामान अभी भी मेरे मेन लगेज में पड़ा हुआ है, क्योंकि कलिम्पोंग आने के बाद मैंने बहुत सारा लगेज अभी खोला नहीं है, तो कुछ सामान वहाँ पड़ा है, उसमें से निकालना है। जैसे मेरे रेन प्रूफ गियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा वो टूल किट वाइटेरा वाला वो भी नहीं मिल रहा है, शायद अंदर ही रखा हुआ है। इस चीज़ मुझे निकालनी है और फिर इसमें पैक करनी है। सेटअप इज़ गोइंग टू बी द सेम, द टेल बैग बिहाइंड, द टैंक बैग अहेड, एंड द 2 एडवेंचर पैक्स ऑन द साइड, जो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, वो भी शायद मेरे लगेज में पड़े। आपने देख ही लिया होगा, सुबह हमेशा की तरह मैंने शुरुआत का जो क्लिप लगाया था जिसमें स्टार्टिंग टू पैक फॉर माई बाइक ट्रिप्स, बट यू गाइज मस्ट हैव नोटिस्ड माई ब्यूटिफुल लिटिल डॉटर शगुन इन द मिड्स ऑफ माई लगेज और ऑफ माई स्टफ, एंड शी गेट्स वेरी वेरी एक्साइटेड। इट इज़ दैट एज फॉर हर जहाँ पे कुछ भी नया उसे मिलता है तो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड, एंड यू गाइज मस्ट हैव हर्ड कि कितना एक्साइटेड वो थी। एंड प्रेजेंटली काका इज़ द ओनली वर्ड शी इज़ यूजिंग। पूरा हाल हो गया है मेरा उसको सिखा के पापा बोल, बट काका एंड मामा। तो काका फॉर हर इज टू एक्सप्रेस एनीथिंग विच मेक्स हर एक्साइटेड, यू नो। सो या, वन मोर थिंग, दिस टाइम अराउंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस इज़ द लिक्विमोली हेलमेट इंटीरियर क्लीनर। तो इसको मैंने पहली बार यहाँ मंगाया है और मैंने आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने इसको यूज़ किया था अभी तो थोड़ी देर पहले। Spray it around, shake it, spray it inside and outside the helmet, let it dry for some time, and then rub it off with a dry cloth. So yeah, this is it for today. इसको पैक करेंगे शाम को, पूरा सब कुछ पैक करके गाड़ी में लोड करेंगे, and then I'll see you guys maybe in the evening or in the morning when I load up the bike. See you guys later.